Welcome to LRNR classes. Today we are going to learn a new prose of class 4 from CBSE course from unit number 7, and the name of the prose is The Giving Tree, which is adapted from Shel Silverstein. So basically ये जो गिविंग ट्री है ये एक स्टोरी है इन फॉर्म ऑफ प्ले. प्ले क्या होता है? जब भी कोई स्टोरी प्ले फॉर्म में होता है, हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर का अपना अपना डायलॉग होता है. यहाँ पे बेसिकली हमारे दो मेन कैरेक्टर्स हैं. एक हो गया हमारा ट्री और एक हो गया हमारा बॉय. तो ट्री का अपना खुद का डायलॉग होता है और बॉय का अपना खुद का डायलॉग होता है. इसके अलावा ये स्टोरी में नरेटर है. नरेटर का काम क्या है? नरेटर इज़ अ स्टोरी टेलर. वो आगे होने वाले इंसिडेंट्स के बारे में नरेट करता है. सो बेसिकली द गिविंग ट्री इज़ अ स्टोरी इन फॉर्म ऑफ प्ले, एंड द मेन कैरेक्टर्स in this story is a tree and a boy, starting from his childhood till he becomes an old man. The boy always demands fruits, branches, trunk whenever he wants it, and the tree gives it to him. And at last the boy asks the tree that he would like to sit on the stump, and the tree allows him to sit on the stump. The author in this particular story describes the giving nature of tree, that though the tree selflessly contributed to the boy starting from his childhood till his old age, it never felt unhappy. It was always happy because it treated the boy starting from his childhood till he became an old man as its friend. So now let us learn the story which is in play form, The Giving Tree, in detail. How do you feel when you help someone? How do you feel when you share your things with others? Read this play to know how a tree feels when it helps a boy. How do you feel when you help someone? How do you feel when you share your things with others? आपको कैसा लगता है जब आप दूसरों का मदद करते हो? सोचो, आप मैथ्स में अच्छे हो, गणित में अच्छे हो, आपका कोई दोस्त उसमें कमज़ोर है, तो अगर आप उसको मदद करते हो और वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इम्प्रूव करता है तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है. तो हाउ डू यू फील? आपको कैसा लगता है जब आप दूसरों को हेल्प करते हो, आप दूसरों से अपनी चीज़ों को शेयर करते हो. आपके पास खिलौने हैं, आप अपने दोस्तों के साथ बांट के खेलते हो. आपके पास कोई किताब है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करके पढ़ते हो, उनके किताबें भी आप बोरो करते हो. तो हेल्पिंग नेचर एक अच्छी बात होती है, चीज़ों को शेयर करना. आप किसी चीज़ में अच्छे हो, अगर दूसरे उस चीज़ में कमज़ोर है तो उन्हें उस चीज़ में मदद करना. तो ये सारी चीज़ें अच्छी बातें हैं. रीड दिस प्ले टू नो हाउ ए ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प्स ए बॉय. तो अब हम ये जो प्ले है उस प्ले को पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि एक पेड़ एक छोटे से लड़के को उसके चाइल्डहुड से लेके उसके बुढ़ापा तक उसको कैसे बस देता ही रहता है, और ये ट्री को लास्ट में कैसे फील होता है ये प्ले को पढ़ने के बाद हम जानेंगे. ट्री, कम हियर माय बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माय ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माय ब्रांचेस. बॉय, swinging from branches. Ah, what fun! Tree, are you hungry? Eat my apples. Boy, eating apples. How delicious! Narrator, when the boy was tired, he slept under the tree. The tree was happy to give its shade, but time went by and the boy grew older and went away. The tree was often alone. After some years,
One day the boy came to the tree and the tree was very happy. Tree, come my boy, come and climb up my trunk and swing from my branches. Boy, I'm too big to climb and play. I want to buy things and have fun. I want some money. Can you give me some money? Tree, I'm sorry, but I have no money. I have only leaves and apples. You can pluck my apples and sell them in the market. Then you will have money. Narrator, the boy happily plucked the apples and carried them away. The tree was also happy, but the boy stayed away for a long time and the tree was sad. One day, the boy came back and the tree shook with joy. Tree, come boy, come and climb up my trunk, swing from my branches, eat my apples, play in my shade and be happy. Boy, I'm too busy to climb trees. I'm getting married and I need a house for my wife and children. Can you give me a house? Narrator, once there was a tree and it loved a little boy. Every day the boy would visit the tree and enjoy its company. Narrator बोल रहे हैं, once there was a tree. एक टाइम पे एक पेड़ था और उस पेड़ को कौन बहुत ज़्यादा पसंद था? उस पेड़ को एक छोटा सा लड़का, एक लिटिल बॉय बहुत ज़्यादा पसंद था. Every day the boy would visit the tree and enjoy its company. और हर दिन वो छोटा बच्चा, वो छोटा सा लड़का वो पेड़ के पास आता और वो ट्री के पास खेलता, ठीक है, एंड एंजॉय इट्स कंपनी. और ट्री को भी वो छोटे से लड़के को उसके पास आते हुए देख बहुत अच्छा लगता था. दोनों में एक अच्छी दोस्ती हो गई थी. ट्री, कम हियर माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस. ट्री उस लड़के से बोलता है, कम हियर माई बॉय, यहाँ पे आओ और क्लाइंब माई ट्रंक, स्विंग माई ब्रांचेस, मेरा जो मेन ट्रंक है उसके ऊपर चढ़ो. चढ़ने के बाद मेरे जो ब्रांचेस हैं उसको पकड़ के तुम क्या करो? स्विंग करो, यानी झूला झूलो. बॉय, स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस, व्हाट फन. बॉय अभी क्या कर रहा है? वो छोटा सा लड़का पेड़ के ट्रंक के ऊपर चढ़ के ब्रांचेस पे स्विंगिंग कर रहा है. क्या कर रहा है? स्विंगिंग करते हुए बोल रहा है, व्हाट अ फन, कितना मजा आ रहा है. ट्री, आर यू हंग्री? ईट माई एप्पल्स. अभी बच्चा ब्रांचेस को पकड़ के झूलते हुए बहुत ज़्यादा थक गया होगा. तो ट्री बोलता है, आर यू हंग्री? क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम भूखे हो? ईट माई एप्पल्स, मेरे जो पेड़ के ब्रांचेस पे बहुत सारे एप्पल्स हैं, उन टहनियों से और या उन ब्रांचेस से तुम वो एप्पल्स को तोड़ के खा लो. बॉय, ईटिंग एप्पल्स, हाउ डिलीशियस. लड़का वो एप्पल्स को खाते हुए बोलता है, हाउ डिलीशियस. ये डिलीशियस यानी टेस्टी, ये कितने ज़्यादा स्वादिष्ट है, टेस्टी है. Narrator, when the boy was tired, he slept under the tree. The tree was happy to give its shade, but time went by and the boy grew older and went away. तो जभी भी ये बॉय छोटा सा था, the little boy used to always come to the tree. तो आके वो क्या करता था? खेलता था, ब्रांचेस पे स्विंग करता था, भूख लगने पर ट्री के एप्पल्स निकाल के खाता था. तो नरेटर बोलते थे कि ये बच्चा कभी कभी, ये लड़का जब थक जाता था तो वो उस ट्री के नीचे सो जाता था क्योंकि वहाँ पे छाँव होता था. और ट्री वॉज हैप्पी टू गिव शेड, और जो पेड़ था वो खुशी खुशी उस बच्चे को क्या दे रहा था? छाँव दे रहा था. बट टाइम वेंट बाय एंड द बॉय ग्रू ओल्डर एंड वेंट अवे. पर जैसे ही दिन गुजरते गए, साल गुजरते गए, ये जो लिटिल बॉय अभी थोड़ा बड़ा हो गया. और अभी ये जो बच्चा है जो रोज रोज हर दिन ट्री के पास आता था, ट्री के साथ खेलता था, उसके ब्रांचेस पे झूलता था, उसके मीठे मीठे एप्पल्स खाता था, वो बच्चा अभी बड़ा होके चले गया. द ट्री वॉज ऑफन अलोन. आफ्टर सम ईयर्स, one day the boy came back to the tree and the tree was very happy.
अभी ऑफन अलोन मतलब रेगुलर बेसिस पे अभी वो ट्री अकेला ही रहता था, क्योंकि कोई उसके पास नहीं आता था खेलने के लिए. द ट्री वॉज अलोन, इट डिड नॉट हैव एनी कंपनी, एनी फ्रेंड. कंपनी यानी फ्रेंड. कुछ सालों के बाद, आफ्टर सम इयर्स, वो जो छोटा सा बॉय था अभी थोड़ा बड़ा हो गया और वो वापस आता है और उसको देखते ही ट्री बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है. ट्री, कम माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस. तो ट्री उस बच्चे को देख के बोलता है, कम माई बॉय, मेरे बच्चे इधर आओ, क्लाइंब अप माई ट्रंक, मेरे ट्रंक पे चढ़ो, मेरे ब्रांचेस को पकड़ो और मेरे ब्रांचेस को यूज करके झूला झूलो, स्विंग करो जैसे तुम पहले एंजॉय करते थे कुछ साल पहले. बॉय, आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले, आई वॉन्ट टू बाई थिंग्स एंड हैव फन. बॉय बोल रहा कि अब मैं, आई एम नॉट अ लिटिल बॉय, आई हैव बिकम समवॉट ओल्डर नाउ. ठीक है, मैं अभी थोड़ा बड़ा हो चुका हूँ, अभी मेरा टाइम नहीं है कि मैं ट्रंक पे चढ़ूँ, खेलूँ. ये छोटे बच्चे करते हैं, अभी मैं थोड़ा बड़ा हो चुका, आई एम टू बिग. ठीक है, अभी मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चीज़ें खरीदना. आई नीड टू बाई थिंग्स, मुझे चीज़ें खरीदनी है, मुझे मस्ती करना है, मुझे एंजॉय करना है, एंड हैव फन. आई वॉन्ट सम मनी, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है. कैन यू गिव मी सम मनी. वो ट्री से पूछता है कि ट्री, क्या आप मुझे थोड़ा पैसे दे सकते हो. ट्री, आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी, आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स. ट्री बोलता है, मैं तो पेड़ हूँ, पेड़ भला क्या दे सकता है, मैं तो एप्पल का पेड़ हूँ, मैं एप्पल्स दे सकता हूँ, मेरे पेड़ पे एप्पल्स है और लीव्स है, मेरे पास पैसे नहीं है. यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट, देन यू विल हैव मनी. मैं तुम्हें एप्पल्स दे सकता हूँ, एक काम करो, तुम मेरे ट्रंक पे चढ़ो, मेरे ब्रांचेस पे जितने भी एप्पल्स है उसको प्लक करो, उसको तोड़ो और तोड़ के उसको जमा करके जाके मार्केट में सेल करो और उससे जो मनी मिलेगा, तुम्हें जो जो चीज़ें खरीदनी है, तुम्हें जो जो एंजॉयमेंट चाहिए, तुम कर सकते हो. You can pluck my apples and sell them in the market, then you will have money. Narrator, the boy happily plucked the apples and carried them away. The tree was also happy. Narrator बोल रहा है कि बच्चे ने वैसा ही किया, उसने सारे एप्पल्स को प्लक किया और वो ले लिया मार्केट, अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया. ट्री भी बहुत खुश था बच्चे को एप्पल देने के बाद. But the boy stayed away for a long time and the tree was sad. लेकिन उस बच्चे ने क्या किया, वो बॉय एप्पल्स लेने के बाद वापस नहीं आया और फिर से वो ट्री को लंबे समय तक अकेला रहना पड़ा. The tree was again alone and he was not having any friend or company. Tree was sad और वो ट्री बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा. One day the boy came back and the tree shook with joy. और कुछ समय बाद, कुछ दिनों के बाद, महीनों के, सालों गुजर जाने के बाद ये बच्चा फिर से वापस आ जाता है वो ट्री के पास और ट्री एकदम खुशी से शुक करता है, मतलब अपना ब्रांचेस को हिलाता है. द ट्री शुक विद जॉय. ट्री, कम बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, ईट माई एप्पल्स, प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी. तो ट्री बोलता है उस बच्चे को, कम बॉय कम, क्लाइंब अप माई ट्रंक, मेरे ट्रंक पे चढ़ो, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, फिर से मेरे ब्रांचेस को पकड़ के झूलो जैसे तुम जब छोटे थे वैसे झूलते थे. ईट माई एप्पल्स, मेरे पेड़ के ब्रांचेस पे जितने भी एप्पल्स है उसको तोड़ के खाओ. प्ले इन माई शेड, मेरे पेड़ के नीचे जितना भी छाँव है वहाँ पे खेलो, आराम करो और एंड बी हैप्पी, एंड खुशी से रहो. बॉय, आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज. बॉय बोल रहा है अभी मेरे पास टाइम नहीं है. आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज, मैं अभी बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे पेड़ पे चढ़ूँगा और तुम्हारे ब्रांचेस पे झूलूँगा, एप्पल खाऊँगा, एंजॉय करूँगा, शेड में बैठूँगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ. अभी आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड ए हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन. मैं शादी करने वाला हूँ और मुझे क्या चाहिए, मुझे एक घर की ज़रूरत है
वहाँ पे मैं अपने होने वाले वाइफ को और होने वाले बच्चों को रखूंगा। कैन यू गिव मी अ हाउस? क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? ऐसा सवाल ये बच्चा ट्री से पूछता है। नाउ let us learn the remaining part of the prose, the giving tree in form of play in detail. Tree, I have no house, but you may cut off my branches and build a house. Narrator, so the boy cut off the tree's branches and carried them away to build a house. The tree was very happy, but the boy stayed away for a long time and the tree was sad again. And when he came back after some years, the tree was so happy that it could hardly speak. Now the boy was a young man. Tree, come boy, come. What can I do for you? Young man, I am going on a business trip. I want a boat to take me away. Can you give me a boat? Tree, all I have left is a trunk. Cut down my trunk and make a boat. Then you can sail away. Narrator, the young man cut the trunk of the tree and sailed away in a boat. The tree was left only with a stump. And after a long time, the young man came back again. Now he was an old man, but the tree recognized him. Tree, I'm sorry, friend, but I have nothing left to give you. My apples are gone. Old man, my teeth are too weak for apples. Tree, my branches are gone. You cannot swing on them. Old man, I am too old to swing on branches. Tree, my trunk is gone. You cannot climb. Old man, I am too tired to climb. Tree, sighing, I am sorry. I wish that I could give you something, but I have nothing left. I am just an old stump. I am sorry. Old man, dear tree, you have always given, but now I do not need much, just a quiet place to sit and rest. Narrator, the old man did, and the tree was still happy. Tree, I have no house, but you may cut off my branches and build a house. तो क्या होता है, वो बॉय अभी बड़ा हो चुका है and he is in a stage to get married and to have children and he requires a house. तो उसको घर चाहिए और वो शादी करने वाला है. तो ट्री ने बोला कि मैं तुम्हें घर तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम एक काम कर सकते हो. तुम क्या कर सकते हो? कट ऑफ माई ब्रांचेस. मेरे जितने भी टहनियाँ हैं, मेरे जितने भी ब्रांचेस हैं, मेरे ट्रंक के ऊपर चढ़ो और उन सारे टहनियों को, ब्रांचेस को काट दो और उन्हीं ब्रांचेस को यूज़ करते हुए तुम अपने लिए घर बना सकते हो. Narrator, so the boy cut off the tree's branches and carried them away to build a house. The tree was very happy. तो नरेटर बोल रहे हैं कि वो जो लड़का, उसने ट्री के जितने भी सारे ब्रांचेस थे, उसने सारे ब्रांचेस को कट कर दिया और वो सारे ब्रांचेस लेके चला गया. फिर भी ट्री दुखी नहीं है, क्योंकि वो उस बच्चे को, जब से वो छोटा था, वो उसको फ्रेंड मानता है और ट्री को बहुत अच्छा लगा कि वो अपने फ्रेंड को मदद कर रहा है. ट्री बहुत ज़्यादा खुश था. But the boy stayed away for a long time and the tree was sad again. परंतु वो ब्रांचेस लेके जाने के बाद वो बॉय वापस ही नहीं आया. The tree remained sad for a long time. और लंबे समय तक ये पेड़ एकदम दुखी था, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था. फिर से वो अकेला पड़ गया. And when he came back after some years, the tree was so happy that it could hardly speak. और फिर से and when he came back after few years, तो कुछ सालों के बाद, after some years, जब वो आया, the tree was so happy. ट्री उस बच्चे को देख के, ठीक है, उस बच्चा जो कि अभी थोड़ा यंग मैन हो गया है, उसको देख के इतना खुश हो गया. कभी कभी होता है कि हम इमोशनली इतना खुश हो जाते कि हमारे मुंह से शब्द नहीं निकलते. तो ट्री कुछ भी नहीं बोल सका, वो इतना खुश था. इट कुड हार्डली स्पीक. नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन. अभी वो जो स्मॉल बॉय
ग्रो अप होके क्या हो गया है, यंग मैन हो गया है। ट्री, कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। ट्री बुलाता है वो यंग मैन को, कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। यहाँ पे आइए और मैं आपको क्या सेवा प्रदान कर सकता हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। यंग मैन, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे। यंग मैन बोल रहा है आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप। बिजनेस ट्रिप मीन्स यू आर गोइंग आउटसाइड फॉर सम वर्क पर्पस। बिजनेस ट्रिप मीन्स आप किसी काम से बाहर जा रहे हो। तो यंग मैन बोलता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, मेरा प्रोफेशनल वर्क है वो, एंड मुझे क्या चाहिए, मुझे बोट चाहिए, मुझे बोट की ज़रूरत है। मैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा हूँ अपने काम के वजह से, और मुझे वाटर रूट यूज़ करना पड़ रहा है, उसके लिए मुझे बोट चाहिए। कैन यू गिव मी अ बोट। वो ट्री से पूछता है कि क्या तुम मुझे एक बोट दे सकते हो। ट्री, ऑल आई हैव लेफ्ट इज अ ट्रंक, कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक ए बोट, देन यू कैन सेल अवे। ट्री ने बोला मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मेरे ब्रांचेस तो तुम काट के ले लिए घर बनाने, अभी मेरे पास बस बचा है तो ट्रंक बचा है। ऑल आई हैव लेफ्ट इज ट्रंक। काम करो, इस ट्रंक को काट दो, और काटने के बाद तुम उससे बोट बनाओ एंड यू कैन सेल अवे, और उसको यूज़ करते हुए तुम अपने बिजनेस ट्रिप में एक जगह से दूसरी जगह सेल करते हुए ट्रैवल करो। Narrator, the young man cut the trunk of the tree and sailed away in a boat. The tree was left only with a stump. नरेटर बोलते हैं कि वो जो यंग मैन था उसने ट्रंक को काट डाला, उससे उसने एक बोट बनाया एंड ही सेल्ड अवे, और वो बोट को यूज़ करते हुए अपने बिजनेस ट्रिप में निकल पड़ा। द ट्री, अभी ट्री के पास कुछ नहीं बचा था, उसके ब्रांचेस चला गया, उसका ट्रंक चला गया, उसका निचला हिस्सा, बस उसका स्टंप बचा था। स्टंप क्यों छोड़ते यूजुअली, कि सॉइल इरोजन ना हो, और बस अभी ट्री के पास बचा क्या था, उसका बस स्टंप, यानी ट्री का बस नीचे वाला हिस्सा ही बचा था। And after a long time the young man came again. Now he was an old man, but the tree recognized him. और बहुत समय के बाद वो यंग मैन वापस आता है, ठीक है, लेकिन वो अभी यंग नहीं है, वो लड़का अभी बुढ़ा हो गया है, अभी एक बुढ़ा आदमी, वो एक ओल्ड मैन बन के आया है। लेकिन उसको भी उस टाइम पे भी ट्री ने उसको पहचाना कि ये वही लड़का है जो बचपन में मेरे पास आके खेलता था, मेरे ब्रांचेस पे झूलता था, मेरे एप्पल्स खाता था, मेरे छाँव में रेस्ट करता था। तो ट्री ने उसको रिकॉग्नाइज किया। ट्री, आई एम सॉरी फ्रेंड, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल्स आर गॉन। ट्री बोल रहा है मेरे पुराने दोस्त, सॉरी, मेरे पास, मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास एप्पल्स नहीं है तुम्हें देने के लिए। ओल्ड मैन, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स। ओल्ड मैन बोलते हैं माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स, अभी मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, मेरे दांत कमज़ोर हो चुके हैं, ये एप्पल्स चबाने के लायक नहीं हैं। ट्री, माई ब्रांचेस आर गॉन, यू कैन नॉट स्विंग ऑन देम। ट्री बोलता है उस ओल्ड मैन से कि देखो मेरे ब्रांचेस भी नहीं है, मेरे टहनियाँ भी नहीं हैं, यू कैन नॉट स्विंग, पहले के जैसे तुम स्विंग भी नहीं कर सकते, झूल नहीं सकते। ओल्ड मैन, आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस। ओल्ड मैन बोलते हैं कि मैं इतना बुढ़ा हो चुका हूँ कि मुझ में इतना क्षमता नहीं है कि अभी मैं ब्रांचेस को पकड़ के झूला झूलूँ या खेलूँ। आई डोंट हैव सो मच कैपेसिटी। ट्री, माई ट्रंक इज़ गॉन, यू कैन नॉट क्लाइंब। ट्री ने बोला कि बचपन में तुम मेरा ट्रंक यूज़ करके चढ़ते थे, और नाउ माई ट्रंक इज़ गॉन, माई ट्रंक इज़ गॉन, यू कैन नॉट क्लाइंब। मेरा ट्रंक ही नहीं है, तुम कैसे चढ़ोगे, माई ट्रंक इज़ गॉन, तुम कैसे चढ़ोगे पेड़ पे। ओल्ड मैन, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब। ओल्ड मैन बोला कि मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं ज़िंदगी में बहुत थक चुका हूँ, मैं आई एम टू टायर्ड, मैं इतना थक चुका हूँ कि मैं चढ़ नहीं सकता ट्रंक पे। ट्री, शाइंग, आई एम सॉरी। ट्री एकदम
शर्म के मारे ये सोचने लगता है कि मन ही मन ना ही मैं उसको एप्पल्स दे पाया, ना ही मैं अपने दोस्त को ब्रांचेस दे पाया स्विंगिंग कराने के लिए, ना ही मेरे पास ट्रंक है जिसे यूज़ करके वो क्लाइंब कर सके। तो ट्री को बुरा लगता है कि वो अपने दोस्त को कुछ नहीं दे पाता है, और वो शाइन एकदम शर्माते हुए लज्जा से बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग बट आई हैव नथिंग लेफ्ट। ट्री बोलता है मुझे और भी देने का मन कर रहा है, आई विश मैं आपको कुछ दे ही दूँ, लेकिन अभी मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। आई हैव नथिंग लेफ्ट, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, मैं बस एक पुराना स्टम्प हूँ, बस है तो सिर्फ मेरे पास क्या है, स्टम्प है। स्टम्प क्या होता है, पेड़ का मेन ट्रंक काटने के बाद थोड़ा सा बस उसका नीचे वाला हिस्सा बचा होता है, तो उसी को बोला जाता है स्टम्प। आई एम सॉरी, तो ट्री बोलता है मेरे पास बस स्टम्प ही है और कुछ नहीं बचा है, मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। ओल्ड मैन, डियर ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवन बट नाउ आई डोंट नीड मच, जस्ट ए क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट। तो ओल्ड मैन बोलता है ट्री यू हैव ऑलवेज गिवन, ओल्ड मैन ट्री से बोलता है कि मैं बचपन में एप्पल्स खाता था, फिर पैसों के लिए मैंने आपके एप्पल्स को भेजा, मैंने घर के लिए आपके ब्रांचेस को काट डाला, मैंने अपने बिजनेस पर्पस के लिए मैंने आपके ट्रंक को काट डाला, जब भी मैंने जो भी डिमांड्स आपको किए हैं एज अ फ्रेंड आपने हर एक डिमांड मेरा फुलफिल किया है आज तक। डियर ट्री यू हैव ऑलवेज गिवन बट नाउ आई डोंट नीड मच, जस्ट ए क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट। अभी ओल्ड मैन बोलता है आई डू नॉट नीड एनीथिंग, अभी तक तो तुम देते ही जा रहे हो, मुझे लेकिन एक शांत जगह चाहिए। आई जस्ट नीड ए क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट, एक शांत जगह चाहिए जहाँ पे मैं बैठ के थोड़ा सा विश्राम कर सकूँगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया हूँ। नरेटिव, द ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वाज स्टिल हैप्पी। तो पे बोला कि तुम मेरे स्टम्प पे आके रेस्ट करो, ठीक है। तो वो ओल्ड मैन जाके ट्री के स्टम्प के ऊपर बैठ के रेस्ट करता है और ट्री एकदम खुश है, उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता कि इसने पूरा ज़िंदगी भर सिर्फ इस बच्चे ने अपने चाइल्डहुड से लेके अपने ओल्ड मैन तक की जर्नी में उसने बस अपने फ़ायदा ही उठाया इस ट्री से, लेकिन एज ए फ्रेंड उसने कभी भी बिहेव नहीं किया। फिर भी ट्री खुश होता है कि उसका जो पुराना दोस्त उसके पास है और उसको एक जगह दे पा रहा है, एक शांत एनवायरनमेंट दे पा रहा है जहाँ पे वो ओल्ड मैन बैठ के रेस्ट कर पा रहा है। So this is all about the prose The Giving Tree, which is adapted from The Giving Tree, written by Shel Silverstein. Let us learn some of the new words which we came across while learning the prose The Giving Tree. Swing, move or cause to move back and forth, forming a curving line. तो swing का मतलब होता है मूव और कॉज टू मूव बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। तो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट से क्या होता है, कर्व लाइन का फॉर्मेशन होता है। तो स्विंग का मतलब होता है मूव इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस। डिलीशियस, हाईली प्लेजेंट टू टेस्ट, हाईली प्लेजेंट टू टेस्ट। डिलीशियस यानी होता है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। हाईली प्लेजेंट, प्लेजेंट का मतलब प्लीज कर देता, मतलब खुश कर देता, इतना स्वादिष्ट होता है कि आपका मन और दिल दोनों खुश हो जाता है। हाईली प्लेजेंट टू टेस्ट। प्लक, क्विकली रिमूव समथिंग फ्रॉम इट्स प्लेस। प्लक का मतलब किसी चीज़ को फटाक से उसके जगह से निकालना, जैसे कि प्लकिंग फ्लावर्स, प्लकिंग फ्रूट्स। तो प्लक का मतलब हो गया क्विकली रिमूव समथिंग फ्रॉम इट्स प्लेस। ट्रिप, गो ऑन अ शॉर्ट जर्नी। ट्रिप का यानी एक छोटा सा ट्रिप मार के आना, यानी कहीं आसपास जाके घूम के वापस आना। वॉयेज, वॉयेज क्या होता है, जब हम वाटरवे यानी सी या रिवर का रूट यूज़ करके एक जगह से दूसरे जगह हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसे बोला जाता है वॉयेज। एस्पेशली ए सेलिंग शिप और बोट। कौन से
चीज़ों को यूज़ करके ट्रैवल करते हैं, शिप या बोट को यूज़ करके ट्रैवल करते हैं। स्टम्प, द बॉटम पार्ट ऑफ ए ट्री, लेफ्ट प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर मोस्ट ऑफ द ट्री ट्रंक हैज़ बीन कट आउट। तो स्टम्प का मतलब क्या होता है? बॉटम पार्ट ऑफ द ट्री, ट्री का सबसे निचली वाला हिस्सा, लेफ्ट प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड, जो कि ज़मीन के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा होता है, जो कि ज़मीन के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा होता है। क्यों प्रोजेक्ट कर रहा होता है? क्योंकि उस मैक्सिमम ऑफ द ट्री ट्रंक को काट दिया होता है और नीचे वाले हिस्से को छोड़ दिया होता है, और वही जो नीचे वाला हिस्सा होता है और ज़मीन के ऊपर जो प्रोजेक्ट किया हुआ होता है, वही हिस्सा आपका होता है स्टम्प। रिकॉग्नाइज्ड, आइडेंटिफाई, एक्नॉलेज द एग्जिस्टेंस। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है किसी को पहचाना, आइडेंटिफाई करना। आप अपने दोस्त को 10 साल के बाद मिलते हो, उसका चेहरा बदल गया होगा, फिर भी आप उसको फटाक से रिकॉग्नाइज करते हो, आइडेंटिफाई करते हो। एक्नॉलेज द एग्जिस्टेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोज, द गिविंग ट्री इन डिटेल। Go through this prose in detail, learn the new words present in this prose, and if you get any value from this video, give it a like, and if you're watching our channel for the first time, subscribe our channel to get the latest notifications related to educational content related to West Bengal Board, Odisha Board, CBSE and ICSE courses. Until then, keep learning and keep sharing. Take care.